ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरियत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। श्रीमद्भागवतम Canto 3, Chapter 23, Devahuti's Lamentation, Text 30-31, 20, 22. 20-21. So 20 there is no purport. I'll just read and we will recite 21. Now I am reading 20. Look. Hamsa paravata bratois tatra tatra nikunjitam kritriman maniyamanoi san odhiruddha dhirajamcho. Translation: here and there in the places where multitudes of living live swans and pigeons, as well as artificial swan and pigeons, so lifelike that the real swan rose above them again and again, thinking them live birds like themselves. Thus, the place vibrated with the sounds of those birds. Text 21, we can recite. Biharo sthanam vishramam shambesha prangana jirahoi jathopajasam rachitoir Bhishmapanam ivatmanaha. Viharasthana visrama shambesha prangana jinari jatopajasam rachitoir Bhishmapanam ivatmanaha. Viharasthana vishrama shambesha prangana jiroi
यथोपजसं रचयते विस्मापनम् इवात्मनः विहारस्थान विश्राम संवेश प्रांगणैर्जिरोये यथोपजसं रचितैर् विस्मापनम् इवात्मनः. Recite somebody. Vyarasthanam vishrama Mataji. Viharasthana vishrama Shambesha pradhana jirai Yathopojosham rachitai Vishmapanam gatmanah. What meaning, purport and translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Viharasthana, pleasure grounds, Vishrama, resting chambers, Shambesha, bedrooms, Prangana, inner ears, Ajirai, with outer ears, Jatha upajanam, according to comfort, Rachitai, which were designed, Vishmapanam, causing astonishment, Iva, indeed, Atmanaha, to himself, Kardam. Translation. The castle had pleasure grounds, resting chambers, bedrooms, and inner and outer ears, designed with an eye to comfort. All this caused astonished man to sage himself. Please repeat after me. The castle had pleasure grounds, resting chambers, bedrooms, and inner and outer ears, designed with an eye to comfort. All this caused astonishment to the sage himself. Purport. Kadamba Muni, being a saintly person, was living in a humble hermitage, but when he saw the place constructed by his yogic powers, which was full of resting rooms for sex enjoyment, and inner and outer ears, he himself was astonished. That is the way of a God-gift person. A devotee like Kadamba Muni exhibited such opulence by his yogic power at the request of his wife, but when the opulence was produced, he himself could not understand how such manifestation could be possible. When a yogi's power and exhibited,
The yogi himself is sometimes astonished. Here the purport of 21 is ended here. Omajnanatimirandhasya jnananjana shalakaya चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। But first, I pay obeisances to all the devotees here and also Srila Prabhupada and all the acharyas. By their mercy, I can speak something. The Srimad Bhagavatam, 3rd canto, chapter 23. Because this subject is householder life. Because if somebody wants to serve the devotee, how we should serve? Here Srila Prabhupada is mentioned. Mainly in the householder life, how the wife, she serve her husband so nicely that their household life will be very peaceful. Srila Prabhupada mentioned here that if somebody just follow these rules and regulation, तो यहाँ जो श्रीमद् भागवतम में ये विषय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष करके वर्तमान युग में अब हम देखते हैं कि विवाह विच्छेद जो बहुत हो रहे, तो कोई यदि श्रीमद् भागवतम के इस
चैप्टर को पाठ करें, विशेष करके गृहस्थ जीवन के जाने के पहले पति पत्नी दोनों ही यदि इस विषय को बहुत ध्यान से गहरा से यदि अध्ययन करे तो वर्तमान युग में ये जो विवाह विच्छेद हो रहे हैं ये कभी नहीं होंगे। क्यों ना श्रीमद् भागवतम यह हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जब इस देवहूति के जो विषाद के विषय में जब वर्णन कर रहे थे तो परीक्षित महाराज उसको सुनते हुए और सुनने के लिए इच्छा हुआ है। तब उन्होंने इस प्रकार से वर्णन किया, जैसे कि हम पहले देख रहे हैं, जो देवहूति जो है शांभु मुनि की जो पुत्री थी, तो शांभु मुनि जो ब्रह्मा जी के एक दिन में 72 मनु के आविर्भाव होता है, और ऐसे एक वैभवपूर्ण जीवन में जीते हुए जब देवहूति ने एक कर्दम मुनि जो एकदम जिसको कुछ नहीं है, केवल एक कुटिया है, और उनको वहां पति के रूप में ग्रहण किए, फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हो मैं तो इतना बड़े राजमहल से आए और यहाँ ऐसे एक कुटिया में मैं से कैसे रह सकूं। तो आप लोग श्रवण किया जो लोग इस अध्याय में कि देवहूति किस प्रकार से कर्दम मुनि को संतुष्ट करने के लिए कितने सेवा किया, उनको सुबह से शाम तक केवल उनके शरीर के प्रति ध्यान ना देते हुए उनके पति को सेवा किया, और उनको पति को जब इस प्रकार से बहुत सुंदर रूप से सेवा किया तब कर्दम मुनि बहुत संतुष्ट हुआ। तब कर्दम मुनि के मन में ये विचार आया कि देवहूति जो राजकन्या के समान है, उन्होंने इतना एकदम सहन किया, इतने ये अवस्था में रहते हुए भी, दारिद्र अवस्था में रहते हुए भी कितने सेवा भावना की तरह मुझे संतुष्ट किया। इसलिए उन्होंने उनके तप के बल से उन्होंने एक ऐसे प्रसाद बनाया जो प्रसाद के यहाँ वर्णना हो रहे थे, हम जो 21 नंबर श्लोक में पढ़ाई कर रहे थे कि एक कर्दम मुनि एक साधारण एक मुनि है और बहुत एकदम सेटिस्फेक्शन मुनि, चलो प्रभुपाद जैसे कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। कोई ऐसे विचार नहीं था उनके मन में कि वो मैं राजकन्या के शादी किया तो इसलिए भगवान मुझे ऐसे वैभव दे दो, ऐसे नहीं किया। और जब वो इस देवहूति के सेवा से संतुष्ट हुआ तो उनके इस यौगिक पावर से उन्होंने एक ऐसे महल बनाया, उसमें बहुत सारी रूम है, रूम के अंदर में इंद्रिय तृप्ति के बहुत सारी व्यवस्था है, और उनके अंदर में बाहर के बहुत सारी सुंदर, एकदम देखने से ही सभी लोग उसमें पूरा एकदम आकर्षित हो जाए, इस प्रकार से एक महल बनाया। और ये देख के कर्दम मुनि खुद आश्चर्य हो गया, कैसे हो गया। तो यहाँ बता रहे हैं कि भक्त लोग जब भगवान के भक्ति करते हैं तो कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान फिर भी उनके इतने सारी वैभव दे देते हैं। जैसे हम लोग जब घर में रहते थे कभी हम लोग पिज्जा नहीं खाए,
क्या पिज्जा है। कभी क्या बोलते हैं, इतने जो ऑपुलेंट बटर पनीर, उसके बाद क्या क्या पनीर सब बनते हैं, तो ये सब घर में होता भी था। तो कभी कभी साल में एक बार जब शादी रादी किसी होता है तब, लेकिन इसको मैं तो हर दिन ना सोचते हुए भी, आज क्या है, आज फीस्ट है, बहुत सारी आइटम, 25-30 आइटम। फिर जब देखते हैं हम जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गिरिराज के पूजन, 108 आइटम, 56 भोग, क्या क्या ना आइटम बनते हैं। ये कभी हम सोचते भी नहीं, क्यों ना। भक्त लोग भगवान के लिए प्रयास करते हैं, और भगवान भक्त लोगों की ये भावना देखकर सब कुछ प्रदान करते हैं। हाँ, आपको ये चाहिए, अब ले लो। हाँ, तो इसीलिए हम देखते हैं यहाँ शुरुआत में बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से सती ने शिव जी को सेवा किया, ये हिमालय कन्या सती जब नारद मुनि जाके शिव जी के पास, शिव जी के बारे में जब दक्ष को बताया कि ऐसे एक सुंदर एक आपके कन्या के लिए एक सुंदर पोती है, जो ये जगत के सभी ये में एक्सपर्ट है। तो ये सुनते हुए दक्ष ने उनके साथ, शिव जी के साथ उनके कन्या सती के शादी दिलाया। और जब शादी करने के लिए आए, वो देखकर दक्ष का पूरा दिमाग आउट हो गया। आया कैसे? एक बुल के ऊपर आए चढ़कर, और उनके बारात क्या था? बारात था भूत पेत और जक्ष, ये सारे सब। फिर भी सती ये नहीं सोचा कि ये नारद मुनि कैसे मुझे शादी दिलाया। उनको पति के रूप में उन्होंने वर्ण किया, तो उनको ही पति के रूप में ये किया। तो इसी प्रकार से ये देवहूति कर्दम मुनि के ये जो एक कुटिया देखकर, वो राजकन्या होते हुए भी ऐसे उनके मन में ये विचार नहीं आया कि मैं ऐसे कैसे भिखारी के सह एक साधु को शादी करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ श्रीमद् भागवतम के द्वारा हम सीख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद ऐसे बताया कि जब हम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये हमारे सोच रहेगा, और उस सोच के द्वारा जब हम भगवान को सेवा करेंगे, तो भगवान हमारे जो कुछ चाहिए वो बहुत आसान से प्रदान कर सकते हैं। भगवान के लिए कोई असंभव कुछ कार्य नहीं है। तो इसीलिए हमारे सेवा की भावना वो ऐसे होना चाहिए। कभी कभी हम इस्कॉन में भी देखते हैं, जब कोई हमारे अथॉरिटी हमको बोलते हैं, अच्छा प्रभु जी थोड़ा ये कर लो, थोड़ा वो सेवा कर लो, वो सेवा कर लो। हम सोचते हैं क्या है, प्रभु जी को कुछ दिखाई नहीं देते क्या मुझे छोड़ के? केवल मुझे ही दिखाई देते हैं। अरे उस कितने सारी भक्त लोग ऐसे ही घूम रहे, उसको कुछ नहीं बोल रहे, केवल मुझे ही बोल रहे सेवा के लिए। लेकिन तब हमको ये सोचना चाहिए कि हमारी कितना अहोभाग्य है कि हम कम से कम हमारे ये समय भगवान के लिए दे पा रहे। हम हमारे इस मनुष्य जीवन में जितना ज्यादा हम भगवान की सेवा करेंगे, और उस सेवा के द्वारा जब हम भगवान को संतुष्ट विधान करेंगे, तो ये भक्ति भगवान हमको ऐसी प्रदान करेंगे। क्यों ना
मुक्ति देवी हाथ जोड़ करके भगवान के भक्त के सामने खड़े रहती है और कहते हैं कि मुझे थोड़ा मौका दे दो, आपके सेवा में लगा दो। लेकिन भक्त लोग क्या कहते हैं? नहीं चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम मम जन्मनि जन्मनिश्वरे भवताद भक्ति रहित। कुछ नहीं चाहिए सब। तो इसलिए ये जो भक्त लोगों के जब इस प्रकार से सेवा भावना रहते हैं, उस सेवा भावना देख के भगवान संतुष्टि हो जाते हैं और संतुष्ट होकर भगवान उनके भक्तों को जो कुछ चाहिए वो प्रदान करते हैं। लेकिन भक्तों को भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि भगवान तो हमको सब कुछ दिलाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जितने जरूरत है हम उनके प्रति यदि ना हम सतर्क रखें तो हमारे क्या होगा? हमारे इस विषय के प्रति आसक्ति हो जा सकते हैं कभी भी। जैसे हम देखते हैं जड़ भरत के जीवन में, जड़ भरत जिस आसक्ति होने के नादे सारे कुछ सब त्याग दिया, आपके साम्राज्य, आपके पत्नी, आपके पुत्र, आपके संसार सब त्याग दिया, आपके महल, क्यों ना आसक्ति हो जाएगा भक्ति में। इसलिए सारे त्याग करके पुलस्त आश्रम में गंडक नदी के पास वहां आ गया है। और वहां आके जब देखा, एक दिन एक हिरनी पानी पीने के लिए आए और उस जब पानी पूरा एकदम संतुष्ट होकर पी नहीं हुआ, क्या नहीं, तब उस एक शेर के आवाज सुनकर डर के मारे जब छलांग लगाया, और वो गर्भवती थी इसीलिए जब छलांग लगाया तब उसके जो शिशु हरिण वो पानी में गिर गए। ये देखकर भरत महाराज के अंदर में एक आसक्ति है, करुणा आया, सॉरी आसक्ति नहीं आया, करुणा आया। ऐसे एक हिरण शावक पानी में गिर कर वो बहने लगे तो उसको उठा के लेके आए। ये तो अच्छा काम किया, क्यों ना करुणा उनके अंदर में आया तो करुणा करके उसको लेके आए, बहुत अच्छे। लेकिन उस शावक के प्रति उन्हें धीरे धीरे इतना आसक्त हो गए, उसके लिए घास, उसके लिए हमेशा ही ध्यान रखना, कहाँ गया, ना कोई शेर ना कोई जंतु उसको खा ले, हमेशा उसके बारे में सोचते 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 एक दिन जब सोचा, शरीर छोड़ा, उस हिरण के बारे में सोचने सोचने के कारण उसको एक हिरण शरीर मिला। तो इसी प्रकार से हमको भगवान के जब सेवा करते करते, जब हम भगवान हमको इस प्रकार से सारे फैसिलिटी देते हैं, तो हम उस फैसिलिटी के द्वारा हम यदि आसक्त हो जाए तो हमारी अवस्था भी ऐसे भरत महाराज की तरह हो। इसलिए हमारे आचार्य लोग बोल रहे हैं, विषय जे प्रीति वे आचये আমার সেই মাত্র প্রীতি हो चरणे तुम्हार। हे भगवान, हमारे जड़ जगत के विषय के प्रति जितने आसक्ति, आप कृपा करें कि इतना आसक्ति आपके चरण के प्रति हो जाए। यदि भगवान के चरण के प्रति हमारे आसक्ति हो जाए तो भगवान के चरण कैसे हैं? अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारो चरण दय ताहाते एखन आश्रय लोभी छाड़िनु भवेर भय। भगवान के चरण कमल कैसे है? अशोक, वहां कोई शोक नहीं है, अभय, कोई भय नहीं है। इस जगत में सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। हम कोई मरना नहीं चाहते, फिर भी हमको मरना ही पड़ते हैं, ये शाश्वत नियम है। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं,
जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यार्थे न तं सचितुमर्हसि। जिसके ही जन्म हुआ है उसको मृत्यु होने वाला है, और जिसको मृत्यु हुआ है उसको जन्म होने वाला है। ये ध्रुव सत्य है। कब तक? जब तक ना हम भक्ति करके भगवान के चरण में शरणागत हो। जब हम भगवान के शरण में हो जाएंगे तभी जन्म मृत्यु चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे। क्यों ना? भगवान के और एक नाम मुकुंद, जिन्हें हमको इस मुक्ति दिला सकते हैं। जब हम उस मुकुंद की सेवा करेंगे, उनको संतुष्ट करेंगे, तब हमारे जीवन इस प्रकार से जन्म मृत्यु चक्र से हम बच जाएंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवत हमको सिखा रहे कैसे इस भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर हम भगवान के चरण कमल के प्रति हमारी आसक्ति हो जाए। यहाँ इस श्लोक में बता रहे कि ये कर्दम मुनि को खुद देखकर खुद आश्चर्य हो गया है कि भगवान कितने करुणामय है। इसलिए भागवतम में एक श्लोक है, औबकीयं स्तनकालकूट जिघंसया पाय्यम् असाद्धि लेवे धात्रिगति उचितम् कम्बा शरणं कम्बा दयालु शरणं ब्रजेम। अहो बकीयम, बक के जो बहिन, बोकी उतना, जिन्होंने भगवान को मारने के लिए स्तन में कालकूट विष लेके आए, फिर भी भगवान क्या किया? उनको धात्रिगत्यम, माता के पद दिए। अहो बकीयम, स्तन कालकूट, स्तन में जो ऐसे जहर लगा के लगे। कंबा दयालु शरणम ब्रजे, ऐसे दयालु भगवान के यदि हम शरण ना ले तो हमारी क्या गति हो। तो इस प्रकार से कर्दम मुनि भी सोच रहे हैं कि भगवान कितने दयालु। केवल मन में एक भावना किया ऐसे एक महल के बारे में, और इतनी सारी सब व्यवस्था दिया, अंदर में इतने सारी रूम, इतने सारी इंद्रिय विषय भोग करने का, बाहर में भी इतने सुंदर, इसके द्वारा इंद्रिय सहज में ही पूरा आकर्षित हो। इस प्रकार से ये जो सोचते हुए कर्दम मुनि जब ये देवहूति के लिए ऐसा व्यवस्था बनाया, फिर भी वो उसके द्वारा वो प्रभावित नहीं हुए। तो इसी प्रकार से हम लोग भी, श्रील प्रभुपाद हम लोग को जो ये युक्त वैराग्य दिया कि जितने जरूरत इतने हमको लेना चाहिए। लोग कहते हैं यार इस्कॉन के भक्त लोग ये बहुत सब ऑपुलेंट है, इनके हाथ में रिस्ट वॉच, एकदम ऑस्ट्रेलिया नहीं तो फ्रांस नहीं तो कहाँ कहाँ के, और कपड़े एकदम चकाचक, और देखने के एकदम ऐसे लग रहा है एफालजन। तो ये जो भक्त लोग खुद के लिए नहीं करते हैं, प्रचार के लिए। आज यदि प्रचार के लिए हम यूज ना करके यदि खुद के बारे में सोचे तो हमारे हालत भी ऐसे ही होगा जड़ भरत की तरह। इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। और ये सारे सब कुछ जो फैसिलिटी भगवान हमको दे रहे हैं, ये केवल भगवान की सेवा के लिए जितनी जरूरत इतना लेके यदि हम भगवान को सेवा करें तो निश्चित रूप से हम इससे मुक्त होकर भगवान के सेवा करते करते हम भगवान धाम चले जाएंगे। यही श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्था इसीलिए बनाया कि सभी लोग कृष्ण भावनामृत होकर ऐसे इसको प्रचार प्रसार और करें, जिसके द्वारा सारे लोग कृष्ण भावना भावित होकर ये जो भगवान से जो बिछुड़ जा रहे हैं, इसके लिए इतने कष्ट भुगत रहे हैं, वो असली सुख शांति प्राप्त करके वो भी इस प्रकार से भगवत धाम वापस चले। यही श्रील प्रभुपाद की इच्छा था। इसीलिए जब श्रील प्रभुपाद पुणे में गए थे, वहाँ बिरला कंपनी के
टाटा कंपनी के रतन टाटा, जो अभी अभी छोड़ा, उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा, स्वामी जी आप लोग हरे कृष्ण वाले लोग केवल हरे कृष्ण जप करते हैं, इसमें सारे जगत के कल्याण कैसे होगा, लोगों को कैसे अच्छे मिलेगा। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, ये सोचिए आपके एक बालक पागल होके जो चले गए, आप बहुत ढूंढ रहे हो, उसको नहीं मिल रहे, और आप भी उसको बहुत ढूंढ रहे, नहीं मिल रहे, और वो तो पागल ही हो गए, वो कैसे आ रही। तो कुछ लोग देखा, अरे इसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, खाना दिया। कुछ लोग देखा, अरे इसके कपड़ा नहीं है, फट गया है, कपड़ा दिया है। और कुछ लोग देखा कि इसके रहने की जगह नहीं है, रहने के लिए जगह दिया। लेकिन एक व्यक्ति जो आपको बालक को जानते थे, वो आके देखा, अरे ये तो टाटा के पुत्र हैं, रतन टाटा के, इसके पिता कितना ढूंढ रहे, चलो चलो कह के उठा के लेके आए। बताइए अभी कौन अच्छा सेवा किया है, आप लोग बताइए कौन अच्छा सेवा किया। वेरी गुड, यही रतन टाटा भी ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे ही इस्कॉन वाला तो वही कर रहे हैं। जो लोग भगवान से बिछोड़ कर इतना सारी कष्ट भुगतते हैं, तो हरे कृष्ण वाला क्या करते हैं, उसको भगवान के साथ जोड़ा देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके अपने घर कैसे वापस जाए वो रास्ता मार्ग दिखा देते हैं। तो इसीलिए हरे कृष्ण वाले हरे कृष्ण के द्वारा सारे जगत को कल्याण, असली कल्याण करते हैं। हरे कृष्ण। हम यहाँ विराम देते हैं। किसी कोई प्रश्न, कोई कौन? यस भाई। कैसे पता चलता है कि हम लोग आसक्ति हो गए और प्रकार में बहुत सुंदर प्रश्न। के नाम में ज्यादा याद आता प्रभु जी के नाम सचमुच वेदों भी एकदम गुरुवाज एक्सपर्ट नाम दे, सब सार्थक नाम दे। देखिए हमारे से हमको दूसरे कोई इतना अच्छा नहीं जानते हैं। लोग देखकर कहेंगे प्रभु जी ना कितने वैरागी हैं, एकदम कुछ नहीं पीते हैं और एकदम थोड़ी खाते हैं। लेकिन हमारे अंदर में क्या भावना है केवल हम ही जानते हैं। तो इसीलिए ये इतने सारी जो फैसिलिटी हमको मिल रहे हैं, इसमें हम आसक्त हो रहे हैं कि इसमें केवल सेवा के लिए लगा रहे हैं, कि हमको ही उसको डिसाइड करना है कि मैं सचमुच, मैं जो भावना लेके इस्कॉन में आया था कि मैं श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, ये भावना अभी तक मेरे अंदर में है ना, इससे मैं और कुछ सोच रहा हूं। हमारे एक गुरु महाराज है, आप लोग शायद सुने नाम, श्रीमद सुबक स्वामी गुरु महाराज, मायापुर में रहते हैं। हम लोग जब मायापुर में रहते थे बीबीटी में, तो महाराज वहां आते थे राय, अरे एकदम फ्रेंड्स के तरह गुरु महाराज ऐसे हम लोग के साथ व्यवहार करते थे। बोलते थे देखो इस्कॉन में बहुत ऑपुलेंट है और यहाँ इसके द्वारा बहुत सहज रूप से हम प्रभावित हो सकते हैं। इस्कॉन में आना और जाना ये बहुत सरल है, बहुत सरल कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई इसको ये नहीं है, रूल्स नहीं है। लेकिन रहना बहुत कठिन। और जो जितना एकदम सेवा भावना के रूप में रहेंगे वही केवल रह सकता है। और
यदि हम सचमुच सेवा भावना हमारे अंदर में नहीं होता है, केवल दिखावट करते हैं, तो हम ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। भगवान कहां से ना कहां से बोलेगा ये तो छली है, फिर चले जाएंगे हम। इसलिए श्री श्रीमद सुखस्वामी गुरु महाराज बोलते थे कि हर एकादशी हमको ये मेजरमेंट करना चाहिए। जैसे थर्मोमीटर से हमारे शरीर में कितना तापमान है वो मेजरमेंट करते हैं, तो ये हमको मेजरमेंट देखना चाहिए कि ये जो मैं भावना लेके आए थे पहले दिन इस्कन में आने के समय कि मैं भक्त बनूंगा, भगवान की अच्छा सेवा करेंगे, भक्तों की अच्छा सेवा करेंगे और इस प्रकार से मेरे मानव जीवन सफल बनाएंगे, ये भावना मेरे अंदर कितना तक अभी तक है, ये मेजरमेंट करके देखना चाहिए। जब हम इस प्रकार से मेजरमेंट करते रहेंगे तो इतने सारी वैभव, इतने सारी ये हमको बांध नहीं पाएंगे, इसके तरह हम आसक्त नहीं हो पाएंगे। यही एकमात्र हमारे बांचने के तरीका है भक्ति जीवन। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? जो बताया गया था हम तो जैसे महाप्रभु ने कहा मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, आपका निश्चय पर हमारा इच्छा तो ये है कि हम ये दुखालय शास्त्र से हम बाहर निकलना चाहते हैं, पर ये अभिलाषा कब आए कि हम भगवान के? वेरी गुड, सुंदर प्रश्न। देखिए, भक्त तो कभी ये नहीं चाहते भगवान मुझे आपके धाम के लेके चलो। भक्त हमेशा ही चाहते कैसे मैं जन्म जन्म भगवान की सेवा करता हूं। लेकिन भगवान इतना करुणामय है, भगवान अपने भक्तों को इस प्रकार से इस भौतिक जगत के जितने सारी उनके जो कर्मफल है उस कर्मफल पे से मुक्त करके उनको धाम में लेके जाते हैं। एक बार एक कहानी है, एक भक्त था और सूरदास, आप लोग नाम सुना है, सूरदास के बहुत सारे गीत हैं। ये जो मधुरम मधुरम, ये भी सूरदास के गीत हैं। सूरदास अंतिम समय में आंख में नहीं देख पाते थे, तो सूरदास उसके अंतिम समय में पूरा डिसेंट्री हो गया, मतलब हमेशा ही टॉयलेट जा रहे ऐसे बिस्तर में, इतना ये हो गया है। तो भगवान खुद एक बालक के रूप में आए और उसके सारे सब बिस्तर टिस्तर सब पूरा साफ सफाई करने लगे। तो सूरदास के मन में विचार आया, कौन ऐसे कर रहे हैं? उसको देखना चाहिए कौन है वो। और जब भगवान बालक के रूप में आकर सेवा कर रहे हैं, सूरदास उसको पकड़ लिया, आप कौन है बताओ, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं आपको। भगवान देखे मुश्किल ये तो अभी ऐसे बताऊंगा तो मुश्किल होगा। तो भगवान किसी प्रकार से सूरदास के हाथ से निकल गए प्रयास करके। सूरदास ने कहा कि भगवान आप मेरे हाथों के बंधन से निकल गए, लेकिन मेरे जो हृदय के बंधन से आप तो निकल नहीं पाओगे। आप ये इतना ना करते हुए आप मुझे अच्छा कर दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है आपके तो सब कुछ कर सकते हो। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ऐसा तो आपको कोई आपके तरफ संभव नहीं है। तो भगवान ने कहा, देखो सूरदास, मैं आपको सब ठीक कर दे सकता हूं, लेकिन आपके जो कर्मफल फिर आप उसके लिए आपको अगले जन्म में आना पड़ेगा।
मैं ये नहीं चाहता हूं। तो इसलिए भक्त लोगों के जीवन में ये जो नाना प्रकार की कठिनाई आते हैं, नाना प्रकार की बाधा आते हैं, ये क्यों ना भगवान इसके द्वारा हमको हमारे जो कर्मफल, उस कर्मफल को काट काट करके हमको शुद्ध करके उनके धाम में लेके जाते हैं। भक्त नहीं चाहते कि मैं भगवत धाम जाऊं, लेकिन भगवान इतना करुणामय है, वो हमको हमारे कर्मफल से मुक्त करके हमको भगवत धाम लेके जाते हैं। इतना ही करुणा है। कंबा दयालु शरणम ब्रजे, ऐसे दयालु भगवान के कौन ना शरण लेना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, शांत गौर भक्त बिंदु की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।